गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एसजेएफएस समझ में आ गया, एफसीएफएस समझ में आ गया। मैंने कल ट्यूटोरियल में भी कराए थे क्वेश्चन, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि अब तो टाइम कम बचा है, कोर्स भी खत्म करना है, बहुत पीछे चल रहा है, तो कोशिश करेंगे कि इसको कोर्स थोड़ा बढ़ाया जाए। तो हाँ, कोई कुछ कह रहा है? तो एफसीएफएस और देखो, ये जो शेड्यूलिंग है, मतलब इसको ढंग से पढ़ लो, बिकॉज 10 to 15 marks are allocated with these topics, okay? तो इसको अच्छे से पढ़ लो तुम लोग। इसमें मतलब शॉर्टेज जॉब, एफसीएफएस, मतलब कोई ना कोई एक आएगा ही, ठीक? तो न्यूमेरिकल ही आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। अब आते हैं शॉर्टेज जॉब का। तो हमने आपको क्या कहते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता ही दिया था। कि एडवांटेज क्या है इसका, कि इट इट गिव्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर शेड्यूलिंग, ओके। If you compare all scheduling algorithm, you will find that it gives the optimal average waiting time, yeah, minimum waiting average time. But the disadvantage is that it is not practically possible. Why it is practically not possible? Because you can't predict that how much a process take time, okay. कितना process एक time लेगा, you can't predict, okay, because if a process enters into the system, it depends upon the resources allocated, peripheral devices and so on, okay. You can estimate कि it will take near about that amount of time, but you can't exact predict how much time it will take, okay. So practically it is not possible. Clear? Second one is that disadvantage is that if the largest if in the system, if always smaller process, smaller burst time comes into the system always, so largest burst time process have to wait for a long time. It may be it may be that it go into the starvation, okay, or indefinite type of blocking. So and this is the problem in SJFS. Okay, so priorities cannot be set for the process uh, because the scheduling is based on the burst time, so priority cannot be set. If there is a high priority job into the system, but it takes shortest job, so you have to do accordingly. Okay, process with larger burst time have poor response time. Definitely, because larger burst time process have to wait for a long, so definitely it have a poor response time. Now come to priority scheduling. As it's known, its name says it is a priority based algorithm. Means each process have a priority. Okay, means any process with higher priority, any priority with least priority, and so on. So each process which enters into the system uh, have a priority, and according to the priority, the process is executed. Okay. So the process which have the highest priority, okay, the process which have the highest priority, it means it will be executed first, and the process which have the least priority, it have to execute it last. Okay, clear? So in priority scheduling, the scheduling process is done is based on priority. In this algorithm, the scheduler select the task to work as per the priority. Okay, so the process with the higher priority should be carried out first, and one thing is there, if the process have the equal priority, so what you have to do? So you have to apply first come first serve algorithm. Okay, means FCFS algorithm you have to apply if the process have the same priority. Clear?
priority depends upon memory requirement, time requirement, etc. So in numerical question, the priority of all process is given, and you have to schedule the process according to their priority. And the priority is given in a numeric format. Okay, it's in a digit format, or you can say it's a number format, and the number which is very less, okay, it have the highest priority, and the number which have the highest, okay, it have the least priority. okay, तो जी मतलब नंबर से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. और अगर क्या है, if any process have the least number, it means it have the highest priority, and the process which have the highest number, okay, it have the least priority. Clear? So I have told you, if two job have the same priority are ready, it works on first come first serve basis. In priority scheduling, a number is assigned to each process that indicates the priority level. Lower the number, higher is priority. In this type of scheduling, if newer process arrive that is having higher priority than the currently a running process is preempted. Okay, clear है? तो क्या होगा कि देखो सिस्टम में क्या होगा कि ऑलवेज न्यू प्रोसेस आर इंटर्ड इनटू द सिस्टम, एंड व्हेन ए न्यू process enter in the system, you have to check it that what is its priority. If it's the highest priority, then the currently process which have the, if which have the least priority, then uh, that particular process must be preempted, and the process which entered into the system which have the highest priority will be executed. Now come to a numerical part. So this is, ठीक है, अब इसको करो तुम लोग. अब देखो क्या है कि क्वेश्चन इज गिवन in which P1 have burst time 10, priority is 3, P2 have burst time 1, priority have 1, P3 have burst time 2 and priority is 4, P4 have burst time 1 and priority is 5, P4 is having burst time 5 and priority is 2. ठीक है, तो अब देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन the highest priority job is P2, then P5, then P1, then P3 and then P5. ओके, P4. तो अब देखो क्या है कि कैसे होगा. सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? द प्रोसेस विच हैव द लीस्ट नंबर, ओके, और द प्रोसेस विच हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो हमने आपको बताया कि द नंबर प्रायोरिटी इज असाइंड टू ए नंबर, ओके, and the process which have the least number will be executed first, or you can say that the process which have the least number have the highest priority. Okay, तो यहाँ पे देखो सबसे कम P2 का है, तो इसका मतलब क्या होगा? P2 P2 is having the highest priority. Okay, तो P2 will be executing first. देख लो यहाँ पे P2 execute हुआ, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो गया? 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ. ठीक, then P5 comes. Okay, why? Because it have now highest priority. Okay, P1 is executed, तो आप P1 को कट कर सकते हैं. ठीक, बचा क्या? 3 4 5 2, so it means P5 have the highest priority, so P5 will be executed. ठीक है, तो 1 से इसका अराइवल टाइम हो गया. ठीक है, और क्या कहते हैं, 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ. इसका मतलब क्या है कि द कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 is 6 और स्टार्टिंग टाइम इज 1. अब इसके बाद कौन एग्जीक्यूट हुआ? P1. P1 started with 6 सेकंड एंड देन कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ? 10 सेकंड के लिए. तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? 16. ठीक, इसके बाद कौन आएगा? P3. P3 आया, इट विल स्टार्ट विद 68 सेकंड एंड एंड विद 18 सेकंड. इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? 18. एंड लास्टली P4 विल बी एग्जीक्यूट. तो अब देखो क्या है, इसमें भी एक वही डिसएडवांटेज है कि द प्रोसेस
which have the least burst time, but the process which have the least burst time but have the highest least priority. Okay, it have to wait for a time. Okay, तो इसका हाँ या तुम लोग करें। अब देखो क्या है कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ। P1 का कितना हुआ, इसका स्टार्टिंग टाइम 6 है, ठीक, तो वेटिंग टाइम इसका 6 हो गया। ठीक है, P2 का कितना हुआ, इसका स्टार्टिंग टाइम 0 है तो इसका 0 हो जाएगा। P5 का स्टार्टिंग टाइम 1 है, नहीं P5 छोड़ दो, P3 का स्टार्टिंग टाइम 16 है तो 16 हो गया। P4 का स्टार्टिंग टाइम 18 है तो इसका वेटिंग टाइम 18 हो गया। एंड P5 का स्टार्टिंग टाइम 1 है तो इसका वेटिंग टाइम 1 हो गया। तो इसको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो ये हमारा ठीक। हाँ, अब इसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करो। टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा। अच्छा एक बात सुन लो सब लोग, इसके जस्ट बाद सरप्राइज क्विज लूंगा, ठीक है, तो इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक, क्लास के जस्ट बाद मैं गूगल क्लास रूम में अपलोड कर दूंगा, ठीक, और उसको कर लेना। ठीक है, तो अभी से मैं बता दे रहा हूँ, बी रेडी फॉर द सरप्राइज क्विज 3। हाँ ठीक है, चलो टर्न अराउंड टाइम करो, इसका कितना आएगा। जल्दी बताओ कोई किया हो। कितना आया कोई बताएगा। रोल नंबर 61 समद अंसारी, बताओ। सर कर रहे हो 2 मिनट। हाँ कोई बताएगा जिसने किया हो। एनीवन। रोल नंबर 88 रवि वर्मा। रोल नंबर 88 रवि वर्मा। अच्छा कौन बताएगा, चलो जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, फटाफट बताओ। निकिता कुशवाहा कौन है, रोल नंबर 68। यस सर। हाँ बताओ, सर किया कि नहीं किया, नहीं किया। सर कर रही हूँ। रोल नंबर 87 रत्नेश वर्मा। रोल नंबर 80 प्रिया अग्रवाल। यस सर, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो किसी का हुआ वो बताए, अगर किसी का हुआ हो तो बताए। सर 12 हाँ सर 12 है क्या। ठीक है 12, और किसी का 12 आ रहा है बताओ। अरे कल 3-4 लड़के थे, बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। सिद्धांत है आज क्लास में, रिया गुप्ता भी, हाँ बताओ।
प्रिया तुम बता रही हो कुछ, कैलकुलेट करो। बताओ जल्दी बताओ। किसी का 12 आया था, और बताओ। अच्छा P1 का कितना आया? P1 का कितना आया? अरे बताओ भाई, टाइम निकला जा रहा है। अरे सिंपल सा देखो, P1 कितना होगा टर्न अराउंड टाइम? P1 का बताओ कोई। 16 आएगा। P2 का कितना आएगा? P1 का देखो टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा, इधर देखो ये। P1 का टर्न अराउंड टाइम सिंपल 16 हो गया, P5 का 6 हो गया, P2 का 1 हो गया, इसका 18 हो गया, और P4 का 19 हो गया। ठीक, अब इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? ऐड करो, कोई बताओ। 16 प्लस तो जो सर जिसने 60। हाँ 60 आएगा, डिवाइड बाय 5 तो 12 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो समझ गए ना। यस सर। पर अगर क्या है कि इसमें अराइवल टाइम गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जिट टाइम है ये हमारा एग्जिट टाइम है। ठीक, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, टर्न अराउंड टाइम निकालने का क्या है कि जो क्या कहते हैं उसका अराइवल टाइम कितना है, ठीक है, या मतलब स्टार्टिंग टाइम और प्लस बस टाइम। ठीक, तो वो उससे भी कर सकते हो। ठीक, जैसे उसका देखो P1 का निकालना है तो P1 का स्टार्टिंग टाइम कितना है 6 और बस टाइम कितना है 10, तो 10 प्लस 6, तो फॉर्मूला ये भी होता है कि क्या कहते हैं, बस टाइम प्लस क्या कहते हैं स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, या आप टोटल यहाँ पे ऐड कर लो कितना है, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये करो वैसे हमने कर रखा है, करो इसको। इसमें देखो क्या है, दोनों चीजें गिवन है, प्रियॉरिटी भी गिवन है एंड द अराइवल टाइम इज गिवन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि या प्रियॉरिटी इज वेरी लेस। किसका प्रियॉरिटी लेस है? यहाँ पे देखना, प्रियॉरिटी ऑफ P1 एंड P3 इज सेम। इसका मतलब P1 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा हमें कि वेदर द process which have the least priority is arrived into the system or not. If it is not, then हमें क्या करना है, we have to move ahead with the next priority. जैसे यहाँ पे क्या है कि P1 का अराइवल टाइम 0 दिया है, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे दिया रहता 3, ठीक, तो अब क्या होता है, यस द priority of the P1 is highest, but it is not arrived into the system. Why? Because after 3 seconds it will be arrived. ठीक है, तो हम कौन सा एग्जीक्यूट कराते, फिर हम लोग P3 को एग्जीक्यूट कराते, नहीं P3 को भी नहीं एग्जीक्यूट करा पाते, क्यों? क्योंकि वो 6 के बाद वो होगा। ठीक है,
तो अब क्या करते हैं हम लोग, P2 को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक, क्लियर है। तो अब देख लेना एक चीज, जब भी प्रियोरिटी का हो या क्या कहते हैं JFS हो या ये सारी चीजें हो, ठीक, या मेन थिंग इज दैट कि यू हैव टू चेक द प्रियोरिटी, बट you have to see that whether arrival time is given or not. If arrival time is given, then you have to perform according to the arrival and priority both. Okay, clear है। तो अब करो इसको, इसका टर्न अराउंड टाइम भी फाइंड करो और वेटिंग टाइम तो हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो अब देखो क्या है कि P1 का कितना आएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं बताता चल रहा हूँ, ये हुआ तुम्हारा। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि अराइवल टाइम 0 है P1 का, तो P1 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। P1 को एग्जीक्यूट कराया, इसकी प्रायोरिटी भी सबसे ज्यादा है, 1 है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका बस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये क्या है, इट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी जब। अब P1 के बाद कौन सा किसका नंबर आएगा, P2 का आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी जो अराइवल टाइम है वो 0 है। वैसे तो P3 आना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि P3 इज नॉट अराइव्ड इनटू द सिस्टम। व्हाई, बिकॉज अभी 4 सेकंड ही एग्जीक्यूशन हुआ है और P3 क्या होगा, 6 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि P2 जिसकी लिस्ट प्रायोरिटी, किसकी लिस्ट प्रायोरिटी है, P2 की। बाकी 3 है, P5 भी है, लेकिन P5 भी 12 के बाद आएगा, तो P2 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक, तो अगर हमने आपको बताया है कि अगर इफ प्रोसेस हैव the same priority, then we have to apply FCFS। ठीक है, तो P1 और P3 P2 को एग्जीक्यूट किया फॉर विच टाइम, जैसे देखो पहला सेकंड एग्जीक्यूट हुआ तो कितना टाइम हो जाएगा, 5। ठीक, 5 पे कोई और दूसरा प्रोसेस नहीं आएगा। जैसे ये 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, 6 सेकंड, वैसे क्या होगा, P3 विल बी अराइव इनटू द सिस्टम, आ जाएगा। अब उसकी प्रायोरिटी देखेंगे, P2 की प्रायोरिटी 2 है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, P2 को प्रीएम्प्ट करा के P3 को एग्जीक्यूट करा लेंगे। ठीक, और P3 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, इसका बस टाइम 7 है, तो ये 13 तक के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब P3, अब देखो 13 सेकंड, नाउ द execution is completed for 30 seconds. It means that and the maximum arrival time is 12. It means all the process are entered into the system. अब हमने क्या कर रखा है, P1 को कंप्लीट करा रखा है, P3 को कंप्लीट करा रखा है। ठीक, अब बचा किसका किसका, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसमें बस टाइम बचा 1। ठीक, ये कट कर लो और ये भी कट। तो अब देखो क्या है, ये भी कट कर लो और अब देखो क्या करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब कौन एग्जीक्यूट होगा, सारे के सारे आ गए। अब बचे कौन कौन, हमारे पास P2 बचा, P4 बचा, P5 बचा। ठीक, P2 and P5 have the same priority but P2 enters into the system first। ठीक, तो P2 will be executed, तो P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक, और कितने टाइम के लिए, क्योंकि now only 1 second is remain। ओके, तो P2 कितने पे कंप्लीट हो जाएगा, 14 पे। अब देखो कौन सा बचा, P5। P5 की प्रायोरिटी कम है, तो P5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 सेकंड के लिए है, तो ये 16 तक जाएगा। इसके बाद कौन एग्जीक्यूट होगा, P4, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक, तो ये कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, 4, तो 16 4 20, तो 20 सेकंड के लिए इसका एग्जिट टाइम है। तो ये इस तरह से क्या होगा, हमारा बन जाएगा। ठीक, क्लियर है, ये हो गया हमारा गैंट चार्ट। तो अब देखो क्या है कि P1 का अराइवल टाइम कितना होगा, P1 का वेटिंग टाइम 0, P2 का बताओ कितना होगा, सर 11। 11 दिख तो रहा है, बताओ कैसे। सर 4 सर पहले से हो जाएगा, हाँ, मतलब 4 तो 0 चलो, पे अराइवल होना था मगर 4 से हुआ।
फिर उसके बाद 6 तक खत्म हो गया। हाँ 2 तो सेकंड किया। अब फिर उसके बाद फिर, हाँ यस सर, फिर 13 पे शुरू हुआ। तो हाँ जो इसके बीच का गैप 7 सेकंड है, तो 7 और 4 11 हो गया सर। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो सबसे बढ़िया क्या है कि इसका एग्जिट टाइम देखो कितना है या कंप्लीशन टाइम 14। यही तो होता है टर्न अराउंड टाइम, एग्जिट टाइम माइनस माइनस बस टाइम, यही तो होता है। यस सर यस। ये भी कर सकते हो 14 माइनस 13, ठीक है। P3 का बताओ, P1 P2 P3 का। तो 0। ठीक, P3 का 0 कैसे? सर 6 पे स्टार्ट था और 6 पे मतलब शुरू भी हो गया, अराइवल भी 6 पे था और 6 पे शुरू भी। वेरी गुड वेरी गुड। P4 का बताओ, 16 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसका अराइवल टाइम कितना है 11, 16 माइनस 11 15 हो गया, ठीक। ठीक है। P5 का बताओ, P5 का क्या है? सर 12 पे 14, स्टार्ट होना था, मगर सर 14 पे स्टार्ट हुआ, तो 2 का आ गया डिफरेंस, तो 2 हो गया वेटिंग ठीक टाइम है। इसका। तो इस वेटिंग टाइम देखो, अराइवल टाइम कैसे करोगे, 14 स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, तो 14 माइनस 12 तो 2 बचा, तो 3.6। एक टर्न अराउंड टाइम निकालो इसका। सर टर्न अराउंड टाइम सर 49 आ रहा है और एवरेज 9.8 आ रहा है सर। T1 का कितना आया? सर P1 का सर P1 का 4 आया है, P2 का 3 आया है, P3 का 13, P4 का 15 और P5 का 14। P4 का कितना आया? P4 का 15 और ठीक, P5 का 14। यही आ रहा है सबका? नो सर, हमारा क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा। सर एवरेज, सर एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम सर 38/5 आ रहा है। 38। P1 का कितना है तुम्हारा? P1 का टर्न अराउंड टाइम तो 4 आएगा, ठीक है। सर 4 आ रहा है, हाँ 4 आ रहा P2 है। का, P2 का 14 P2 का 14, टर्न अराउंड टाइम। P2 का। यस सर। अच्छा, चलो। और P3 का? सर 7 आ रहा है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस, अराइवल टाइम। तो P2 का कंप्लीशन टाइम 14 है और अराइवल टाइम 0, तो 14 हो गया, ठीक है। P3 का, P3 का कंप्लीशन टाइम 13 है, अराइवल टाइम 6 है, तो 7 हो गया, ठीक। P3 का 7 आ रहा है। P4 का, P4 का कंप्लीशन टाइम 20 है, ठीक। P4 का 9 आएगा। कितना आएगा? P4 का 20 है 9। और ये आ जाएगा 9, ठीक। और P5 का 16 माइनस 12 यानी कि 4, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेना, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर अराइवल टाइम गिवन है, वैसे अगर देखो सिंपल सा है, अगर अराइवल टाइम इज नॉट गिवन तो जितना कंप्लीशन टाइम है बस उसके हिसाब से कर लो। बट इफ अराइवल टाइम इज गिवन तो टर्न उसके कंप्लीशन टाइम में वो क्या कर लो, अराइवल टाइम माइनस कर लो, ठीक। अराइवल टाइम का मतलब है कि अराइव एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से लेके कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। क्लियर है? तो अब देखो क्या है, ये कर लोगे तुम लोग, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। एडवांटेज पे क्या है, तो प्रोसेस जो होता है कि इसमें जैसे होता क्या है कि अभी जो एचसीएफएस और एसजीएफएस में क्या है कि इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी कम इनटू द सिस्टम, ठीक है, तो होता क्या है कि उसको क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन अगर उसका क्या कहते हैं बस टाइम ज्यादा है या सिस्टम में देर में एंटर किया है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एफसीएफएस और एसजीएफएस वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था। तो ये प्रॉब्लम आती थी, तो इसलिए क्या है प्रायोरिटी सेट कर दी गई, तो क्या है प्रायोरिटी में क्या है कि प्रीएम्पशन हो ही जाएगा, ठीक। क्लियर है?
तो क्या है कि इन हायर priority शेड्यूलिंग, हायर priority जॉब डज नॉट नीड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है, इसके सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है दिस इज द स्टारवेशन। एक स्टारवेशन का मतलब क्या है कि इफ द process which have the lowest priority, it may possible that it never execute or it may go into the indefinite blocking, जिसे indefinite blocking भी कहते हैं, यानी कि वो सिस्टम ब्लॉक ही हो गया एंड इट कंटिन्यूअसली वेटिंग फॉर इट्स टर्न। ठीक, क्लियर है? जैसे क्या है कि किसी की priority 14 है, देयर आर 30 प्रोसेस इन द सिस्टम एंड किसी की priority 17 और 18 है, और प्रोसेस क्या है, इंटर किए जा रहे हैं और जिसकी priority क्या है 14 से कम है। ठीक, तो इट मे पॉसिबल कि प्रोसेस इंटर किए जा रहे हैं और जिसकी priority हाईएस्ट है वो इट विल नेवर गेट चांस टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो वो इंडेफिनिट ब्लॉकिंग भी कहते हैं या स्टारवेशन भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है? तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो इसको रिमूव कैसे करते हैं? एजिंग से। ठीक, एजिंग का मतलब क्या है कि जैसे एजिंग का मतलब वही हम लोग की जैसे एज है वो बढ़ती जाती है एक एक साल। ठीक, क्लियर है? तो क्या होगा, ये टेक्निक क्या कहलाती है? एजिंग की। तो हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट, जैसे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा बाकी अदर प्रोसेस की जो प्रायोरिटी हम लोग क्या करेंगे, एक क्या कर देंगे, कम करते जाते हैं। ठीक, मतलब या उसकी प्रायोरिटी बढ़ाते जाते हैं। ठीक, क्लियर है? हाँ, प्रायोरिटी बढ़ाने का मतलब है कि उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको एक कम कर देंगे। तो किसी ना किसी टाइम पे ऐसा आएगा कि जो हाई लोएस्ट प्रायोरिटी था हम उसकी प्रायोरिटी एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो इट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट चांस टू एग्जीक्यूट। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी कभी ना कभी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एजिंग टेक्निक। ठीक, क्लियर है? तो क्या होता है कि जैसे जैसे एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे कंप्लीटली, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, द सिस्टम the process which are into the system or into the ready queue but due to the high least priority they are not able to execute। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम उनकी जो रेडी क्यू में प्रोसेस हैं बट दे हैव द लीस्ट प्रायोरिटी, अब उनकी हम प्रायोरिटी एक एक बढ़ाते जाएंगे। ठीक, क्लियर है? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी भी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक, एंड दे विल गेट चांस टू एग्जीक्यूट। ठीक है, क्लियर है? तो हमें लगता है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनकी देखो FCFS, FJFS और प्रायोरिटी, ये तीन हो गए। अब बचा हमारा एक राउंड रॉबिन है। ठीक है, और मेन यही चार है। ठीक है, तो कल हम बताएंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पे। तुम लोग अटेंडेंस दो चाहे ना दो, ठीक है, क्योंकि सरप्राइज क्विज इसके बाद मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक, तो मैं इसको सेशन एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जो सरप्राइज क्विज में प्रेजेंट होगा मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगा। क्लियर है? तो तुम लोग गूगल क्लासरूम पे अभी, मैं 2-3 मिनट लगेगा, मैं अभी पेपर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सेशन एंड कर दे रहा हूँ।